let's go on to the last topic of this chapter. First chapter some basic concepts of chemistry, concentration of solutions. क्या होता है concentration of solution? Solution क्या होता है सबसे पहले? It is a homogeneous mixture of two or more components. ठीक है? जैसे homogeneous का मतलब कि same phase. अगर हमने water लिया है, water के अंदर हमने sugar डाल दिया है, तो देखने से हम differentiate नहीं कर सकते कि इसमें sugar है और इसमें sugar नहीं है. Similarly अगर हम salt डालते हैं तो देखने से again हम differentiate नहीं कर सकते. ठीक है? उसे हम solution बुलाते हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. पर हम यहाँ पे जो मिक्सचर सॉल्यूशंस की ले रहे हैं, we are only going to consider two components A and B. ठीक है? A solution made up of two components where A is the solvent and B is the solute. Like you're taking a solution of sugar in water, then sugar is going to be the solute and water is going to be the solvent. अब concentration क्या हुई? concentration का मतलब होता है कि कितना solute present है एक specific solvent, specific amount of solvent के अंदर. ठीक है? उसको हम लोग concentration बुलाते हैं. जैसे आपको पता है कि आप मार्केट में जाते हो, रूह अफ़ज़ा पता है ना? रूह अफ़ज़ा एक स्क्वॉश टाइप होता है. जनरली समर्स में हम लोग पीते हैं उसको. तो वो concentrated mixture होता है of water and sugar और उसमें रोज सिरप डाला होता है. ठीक है? सो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हुआ कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा है. जब हम उसमें पानी डालने लग जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं. तो पानी डाल के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर जो है वो कम हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट? So over here when we are talking of concentration of solutions and we are saying that concentration is the amount of solute present in a specific amount of solvent, तो हम various methods से concentration of a solution को calculate करते हैं. The first method that is going to be equal to mass percentage. Mass percentage, we are taking a binary solution A and B. Let's say that the weight of A that is equal to WA and the weight of B that is equal to WB, right? So if we want to calculate mass percentage of A, then that is equal to weight of A upon total weight. WA plus WB into 100. ठीक है? In a similar manner, percentage of B will be equal to weight of B upon total weight into 100. Right? फिर second method जो है, that is volume percentage. Volume percentage, again let's take a binary solution AB. Let's say volume of A that is equal to VA and volume of B that is equal to VB. Yes, sir. When we want to calculate the volume percentage of A, that is going to be equal to volume of A upon total volume into 100. Yes, sir. Similarly, percentage of B that is going to be equal to volume of B upon total volume into 100. ठीक है? थर्ड जो मेथड होता है, parts per million, which is also known as ppm.
ठीक है। ppm का मतलब होता है जैसे हम ऊपर परसेंट करते हैं ना, सेंट का मतलब होता है 100, Yes, sir. ppm का मतलब होता है 10 raised to power 6 parts in 1 million। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है इसको हम जनरली यूज करते हैं टू कैलकुलेट amount of pollutants present in the atmosphere, amount of pollutants present in the atmosphere। pollutants क्या होते हैं, जो pollution create करते हैं, ठीक है। सो जब हम amount of pollutants कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है ppm, तो हम क्या लेंगे, amount of sulfur dioxide upon total weight of atmosphere into 10 raised to power 6। ठीक है, तो कितनी सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अपॉन टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू 10 raised to power 6, that gives us parts per million of sulfur dioxide। क्लियर हो गया यहाँ तक? Then the fourth method we go to, fourth method is molarity। polarity को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ। polarity क्या होती है, that is equal to number of moles of the solute। हमने बोला कि B solute है, तो number of moles of the solute dissolved per liter of the solution। पूरे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसे हम मोलारिटी बुलाते हैं, और वॉल्यूम भी हम किस में ले रहे हैं, लीटर्स में। अगर वॉल्यूम्स मिलीलीटर्स में दे रखी है तो उसे लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमको ये भी पता है, हमने करा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट गिवन अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ द सॉल्यूट लेंगे अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, पोलैरिटी क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब जब हम देखें यूनिट्स पोलैरिटी की, ये सब तुम्हारे एमसीक्यूज में आते हैं। यूनिट्स ऑफ पोलैरिटी दैट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। Yes, sir. ठीक है, यूनिट्स इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। यहाँ पे एक ड्रॉबैक पोलैरिटी का क्या रहता है कि मोलैरिटी changes with temperature। Why does it change with temperature? Because it depends upon वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है, तो इसलिए अगर टेम्परेचर हम बदलेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम विल चेंज, वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी विल चेंज। तो इसलिए मोलैरिटी एक बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। क्लियर? सेकंड, जो फिफ्थ हमारे पास मेथड है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे हमको सॉल्वेंट का लेना है पर केजी। यहाँ पे हमने वॉल्यूम किसका लिया था, सॉल्यूशन का, और यहाँ पे हम किसका वेट ले रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट का। ठीक है, अब अगर तो ये केजी में दिया है तो गुड इनफ, पर अगर ये ग्राम्स में दिया है तो हम क्या करेंगे, इनटू 1000। Yes, sir. Right? So molarity is equal to this. We know that NP is equal to WB upon NP. Yes, sir. So molarity will become equal to
into 1000, Hundreds. right? WB into 1000 upon MB into WA. यूनिट्स जब मोलारिटी की देखते हैं, मोल्स पर केजी, okay, and molarity is a better method to express concentration is a better method to express concentration as it does not depend upon volume and it will not change with temperature. ठीक है, मोलारिटी में तो हमने बोला कि changes with temperature. यहाँ पे it is a better method to express concentration as it does not change with temperature. ठीक है जी, फिर ये आ गई मोलारिटी. The next we have is mole fraction. The next is mole fraction. Mole fraction को हम डिनोट करते हैं by x. Yes, sir. ठीक है, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं a b, let's say that the mole fraction of a is xa and the mole fraction of b is xb. So then xa that is going to be equal to number of moles of a upon total number of moles. ठीक है, and xb that is going to be equal to number of moles of b upon total number of moles. Clear? Yes, sir. Always you have to remember that total mole fraction xa plus xb that is going to be equal to 1. Clear? जो units होते हैं इसके, mole fraction has no units, therefore it is a unitless quantity. क्यों नहीं होते units? क्योंकि न्यूमरेटर में भी मोल्स है, डिनोमिनेटर में भी मोल्स है, Yes, मोल्स और मोल्स कैंसिल हो गए, Yes, sir. तो इसलिए उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती. Yes, sir. Got it? Also जो मोल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं, हम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. जब आप क्लास 12 में जाओगे तो यू विल सी कि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है ऑलमोस्ट मोल फ्रैक्शन के ऊपर. ठीक है, सो जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, अगर सपोज हमारे पास एक और कंपोनेंट हमने ले लिया c और उसकी मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू xc, Yes, so we say that xa plus xb plus xc that is equal to 1. yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल N. और नॉर्मैलिटी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. Yes, sir. ठीक है, सो नॉर्मैलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है बेसिकली, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं विद इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, सो हम बोलते हैं कि इट इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, Yes, sir. जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं वेट गिवन अपॉन मोलर मास ना, Yes, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम बोलते हैं वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अब एक और नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट हम डिफरेंट
सब्सटेंसेस का डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं. जैसे लेट्स कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड. एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन basicity of the acid. Right? Yes, sir. What do we understand by basicity? Basicity is the number of replaceable H positive ions in an acid. Number of replaceable, कितने H positive हम replace कर सकते हैं. जैसे अगर हमने HCl लिया है तो HCl में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसकी जो बेसिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1. क्लियर? तो जब हमको उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 1. Yes, sir. क्लियर? ओके. फिर उसके बाद आ गया H2SO4. Yes, sir. H2SO4 के दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं. तो इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज 2. ठीक है? Yes, sir. So let's take another example. We have H3PO4. 3. Yes, sir. Have you understood? Yes. Okay. Second, let's calculate the equivalent mass of a base. Equivalent weight of a base that is equal to molecular weight upon acidity of a base. अब acidity क्या हुई? It is number of OH. replaceable OH negative ions. Base में OH negative ions होते हैं ना? Yes, sir. तो जैसे हमने KOH ले लिया तो इसकी acidity क्या आ जाएगी? 1. Yes, sir. क्योंकि एक OH negative रिप्लेस कर सकते हैं हम. अगर हम ले लें बेरियम हाइड्रोक्साइड तो इसकी क्या आ जाएगी? 2. राइट? अगर हम ले लें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो इसकी क्या आ जाएगी? 3. ठीक है? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर थर्ड हम सॉल्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉल्ट का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी. राइट? जैसे हमने NaCl ले लिया तो NaCl में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी इज 1. Yes, sir. सो मोलर मास डिवाइडेड बाय 1. Yes, sir. राइट? अगर हमने ले लिया NgCl2 तो मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी दैट इज 2 पॉजिटिव. Yes, sir. Yes, sir. सो मोलर मास ऑफ MgCl2 डिवाइडेड बाय 2. Yes, sir. ओके? अगर हमने AlCl3 ले लिया तो 3 होता है. हाँ 0. 3 positive. Clear? Yes, So yes. these are the methods to express concentration. Yes, sir.